Let's hope and pray کہ we cross this threshold in next 2-3 days. پاکستان کی افواج کے سربراہ کی تعیناتی ہے جن کے ہاتھ میں ہماری ملک کا حفاظت کا ذمہ ہے، جو برملا کہہ رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا ہے. لیٹس سپورٹ دیم. ان کو یہ اپرچونٹی دیں کہ وہ اپنے اس پلیج کو، اپنے اس وعدے کو پورا کر سکیں. عمران خان کی طرح یہ مفادات کا پیج کوئی نہیں ہے جہاں پہ صرف آئین اور قانون کا پیج ہے، اور ہم اس پیج پہ ایک ہیں. تمام اداروں کو اس پیج پہ ایک ہونا پڑے گا. آرمی چیف کی تقرری، وزارت دفاع کو وزیر اعظم کا خط موصول، جی ایچ کیو کو آگاہ کر دیا گیا. چند روز میں معاملہ تکمیل کو پہنچ جائے گا. آئینی تقرری پر عمران خان نے ہجانی کیفیت پیدا کی، اقتدار بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کردار ادا کرنے کی دعوت دی. ملک میں اب صرف آئین اور قانون کی بالادستی کا ہی پیچ ہوگا. عمران نیازی بڑھ کے مارنے کی بجائے عدالت جائیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹرز کا الوداعی دورہ. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات. ملک کی سمندری اور فضائی سرحدوں کے تحفظ میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے کردار کی تعریف. جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا بھی دورہ. یادگار شہداء پر پھول چڑھائے. وزیر خزانہ کا آرمی چیف کے خاندان سے متعلق غیر قانونی اور غیر مصدقہ ٹیکس معلومات لیک ہونے کا سخت نوٹس. معاون خصوصی طارق محمود پاشا کو معاملے کی تحقیقات کرنے کا حکم. ذمہ داروں کا تعین کر کے رپورٹ 24 گھنٹے میں پیش کی جائے. اسحاق ڈار. عمران خان لانگ مارچ سے سیاسی قیادت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. آرمی چیف کی تقرری معمول کا عمل ہے. فیصلے کسی کی مرضی سے نہیں، آئین کے مطابق ہوں گے. ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کو مل بیٹھ کر بات کرنا ہوگی. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان. توشہ خانہ ریفرنس. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں عمران خان کے خلاف کل سے ٹرائل کا آغاز. فوجداری کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھجوایا گیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات. چینی کی برآمد، جنرل سیلز ٹیکس اور دیگر امور پر گفتگو. وزیر خزانہ کا چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے ذخائر برقرار رکھنے پر زور. چینی کی صنعت کے ساتھ گنے کے کاشتکاروں کے مسائل پر بھی توجہ دینی ہے. کاروبار میں آسانی کے لیے بزنس کمیٹی کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے وزیر خزانہ. شہداء ہمارا فخر. صدر ڈاکٹر عارف الوی کا باجوڑ میں شہید ہونے والے نائک تاج محمد اور لانس نائک امتیاز احمد کے اہل خانہ کو ٹیلی فون. شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا. قوم کے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین. انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں زلزلے نے تباہی مچا دی. 62 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی. زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ. زلزلے کا مرکز مغربی جاوا میں 10 کلومیٹر زیر زمین تھا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اظہار افسوس. قیمتی جانی نقصان پر دکھ کا اظہار. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کشمیریوں کی نسل کشی پر عمل پیرا. دوران حراست نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ماورائے عدالت قتل کے واقعات روکنے میں کردار ادا کریں. کل جماعتی حریت کانفرنس. قاسم توقاف قازقستان کے دوبارہ صدر منتخب. 81.31% ووٹ حاصل کیے. الیکشن میں مجموعی طور پر 6 امیدواروں نے حصہ لیا. 83 لاکھ ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مبارکباد. روس اور یوکرین کے درمیان ڈونیٹسک کے محاذ پر شدید لڑائی. نیوکلیئر پاور پلانٹ گولہ باری سے لرز اٹھا. اس طرح کے حملوں سے بڑی جوہری تباہی کا خطرہ ہے. بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی پاور پلانٹ پر حملے کی شدید مذمت. شام کے شمالی علاقے سے ترکیہ کے سرحدی علاقوں پر راکٹ حملے. 3 افراد ہلاک. راکٹ علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے زیر کنٹرول علاقے سے فائر کیے گئے.
چین اور قطر کے درمیان LNG کی فراہمی کے لیے $60 ارب کا معاہدہ. قطر انرجی چائنا پیٹرولیم اینڈ کیمیکل کارپوریشن کو 27 برس میں سالانہ 4 ملین ٹن مایا گیس فراہم کرے گی. LNG کی ترسیل 2026 میں شروع ہوگی. امریکی ریاست نیو یارک میں برف کا غیر معمولی طوفان، نظام زندگی مفلوج، 6 فٹ سے زائد برف باری، متعدد پروازیں منسوخ، سینکڑوں مسافر ایئرپورٹس پر پھنس گئے. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک. کالام میں -5، زیارت -4 اور ہنزا سکردو استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. پنجاب کے میدانی اضلاع میں صبح کے اوقات میں دھند کا امکان. انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے بابر اعظم کی قیادت میں 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. سرفراز احمد، فاسٹ بالر محمد علی اور سپنر ابرار احمد شامل. شاہین آفریدی، حسن علی، فواد عالم اور یاسر شاہ اسکواڈ سے باہر. انگلش ٹیم 27 نومبر کو پاکستان پہنچے گی. پہلا ٹیسٹ 1 دسمبر سے راولپنڈی، دوسرا 9 دسمبر سے ملتان اور تیسرا ٹیسٹ 17 دسمبر سے کراچی میں کھیلا جائے گا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں نازیہ خان. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ہمارا رہبر سب سے بہتر. فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر. ہمارا رہبر سب سے بہتر، ٹھنڈے کو ٹھنڈا اور گرم کو رکھے گرم. فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر. آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق وزیر اعظم کا خط وزارت دفاع کو موصول ہو گیا ہے اور اس بارے میں GHQ کو آگاہ کر دیا گیا ہے. امید ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا آئینی عمل آئندہ چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا. یہ بات وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے زیر صدارت قومی اسمبلی اجلاس کو بتائی. وزیر دفاع نے کہا کہ 75 سال میں پہلی بار فوج نے باقاعدہ اعلان کیا کہ وہ نیوٹرل رہ کر صرف اپنا آئینی کردار ادا کرے گی. تاہم عمران خان نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے آرمی چیف کی تعیناتی کے مسئلے پر قوم کو ہیجان میں مبتلا کیا. میڈیا میں جو ایک بے چینی، وہ خود بھی بے چین ہوئے ہیں میڈیا والے، اور ساتھ ساری قوم کو بھی بے چین کر رہے ہیں. تو میری اس فلور سے استدعا ہے میڈیا کو کہ یہ پروسیس جو سٹارٹ ہو چکا ہے آج سے، اس کی سینکٹیٹی جو ہے برقرار رکھیں. میں یہاں پہ کیٹاگوریکلی جو ہیجان ہے اس کو سبسائڈ کرنے کے لیے کہوں گا کہ آج منسٹری آف دفاع کو وزیر اعظم کا خط موصول ہوا اور وہ خط جو ہے کمیونیکیٹ GHQ کو ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کل جو ہے یا پرسوں جو ہے 1-2 روز یا 3 روز میں یہ سارے کا سارا مرحلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا اور یہ جو ہیجان جو ہے یہ سبسائڈ کر جائے گا. خواجہ محمد آصف نے کہا کہ عمران خان اپنے سیاسی مفادات کے لیے غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. واضح کرتا ہوں کہ اب ملک میں صرف قانون اور آئین کی بالادستی کا ہی ایک پیج ہوگا. مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اور پنڈی ایک پیج پہ ہیں، تو میں نے ان کو جواب دیا پیج صرف آئین اور قانون کا ہے اور کوئی پیج نہیں ہے. عمران خان کی طرح یہ مفادات کا پیج کوئی نہیں ہے، مفادات کا پیج نہیں ہے. یہاں پہ صرف آئین اور قانون کا پیج ہے اور ہم اس پیج پہ ایک ہیں. تمام اداروں کو اس پیج پہ ایک ہونا پڑے گا.
जिस तरह ये उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आज़म जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट का है, प्रेसिडेंट जो है वो PTI का है, ये समरी भेजेगा, वो समरी पे बैठ जाएंगे, मुल्क का सोचें। पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह की तयनाती है, जो बरमला कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि हमने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है। लेट्स सपोर्ट देम, उनको ये अपॉर्चुनिटी दें, हम सियासतदान ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने इस प्लेज को, अपने इस वादे को पूरा कर सकें। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने पहले अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्जाम आयद किया, फिर इससे यू टर्न ले लिया। इसके बाद फौज और एजेंसियों पर इल्जाम आयद किया और फिर खुद ही अपने इल्जाम से बरी जिम्मा करार दे दिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हम तस्लीम करते हैं कि 75 साल में कौम ने जिन तवक्कुआत से सियासतदानों को पार्लियामेंट में भिजवाया वो तवक्कुआत पूरा न हो सकी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद और कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के अलविदाई दौरे किए। ISPR के मुताबिक नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ ने नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान के साथ मुलाकात भी की। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क की समुद्री सरहदों के दिफा में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सलामी दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुल्की फजाई सरहदों के दिफा में पाक फजाइया की पेशा वराना सलाहियत को सराहा। उन्होंने कहा कि पाक फजाइया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कलीदी किरदार अदा किया है। कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के दौरे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने सियाचिन और लाइन ऑफ कंट्रोल समेत मुल्क की सरहदों के दिफा में रावलपिंडी कोर की खिदमात को सराहा। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रावलपिंडी कोर हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार ने आर्मी चीफ के अहल खाना की टैक्स मालूमात के गैर कानूनी और गैर ज़रूरी लीक होने का सख्ती से नोटिस लेते हुए फौरी तहकीकात की हिदायत की है। मुआविन ख़ुसूसी तारिक महमूद पाशा को हिदायत की गई है कि FBR के डेटा की खिलाफ वर्जी के बारे में 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि यह मामला वाज़ेह तौर पर टैक्स मालूमात की मुकम्मल राजदारी के कानून की खिलाफ वर्जी है। इस संगीन कोताही में मुलव्विस जिम्मेदारों का तयन करते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट पेश की जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ़ौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्री का अमल शुरू हो चुका है। आईनी तकाज़ों के मुताबिक 25 नवंबर तक तमाम अमल मुकम्मल हो जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाक फौज में आला तरीन ओहदों पर तकर्री का अमल शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में कोई डेडलॉक नहीं, समरी आ जाएगी तो नामों पर बहस होगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना था कि सीनियर मोस्ट 5 या 6 के नाम आ जाएंगे, उन्हीं में से फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हतमी फैसला इत्तेहादी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत को एतमाद में लेकर किया जाएगा। कोई डेडलॉक नहीं है, कोई नामों के ऊपर कोई जब समरी आएगी तो फिर नामों के ऊपर जो है बहस होगी या पूछा जाएगा अफवाज की जो है उनको पूरी तरह इत्मीनान में दिया जाएगा, सब देंगे। उसके बाद जो फैसला होगा नामों का, इस वक्त जो है जो सीनियर मोस्ट लोग हैं 5 या 6 जो है उनके नाम आ जाएंगे, उनके साथ दोस्ती आ जाएंगे। इसके अलावा कोई फैसला या कोई उसमें पेश रफ्त जो है इस किस्म की नहीं हुई। प्रोसेस जो है वो जो मीडिया पे इसमें चल रहा है वो समरी अभी तक जो है अगले 1-2 रोज में जो ना मैंने पर्सनली कहा था मीडिया को कि ये प्रोसेस जो है मंडे को स्टार्ट है। तो प्रोसेस जो है आप समझ लें कि एक किस्म का स्टार्ट हो चुका हुआ है।
اور یہ ہمیں کوئی ایسا کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے. اور کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ 25 تک. وزیر دفاع نے ایک سوال پر کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کورونا سے مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں موجودہ حالات پر تبادلہ خیال ہوا ہے. رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری معمول کا عمل ہے. عمران خان اپنے مذموم مقاصد کے لیے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. فیصلے کسی کی مرضی سے نہیں، آئین کے مطابق ہوں گے. مزید تفصیل بتائیں گے یاسر حسین. سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان نے سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر متعارف کرایا. لانگ مارچ کے ذریعے ملکی قیادت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اہم تقرری جس کا آئینی حق ہے وہی کریں گے. لانگ مارچ کرتے ہیں اور یہ کہ ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لائیں گے، اور اپنی مرضی کے آرمی چیف لانے کے لیے آپ ہماری دفاعی قیادت کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، ہماری سیاسی قیادت کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں. کل اگر میں کہوں کہ میری مرضی کا آرمی چیف ہوگا، پیپلز پارٹی کہے کہ میری مرضی کا آرمی چیف ہوگا، تو ہمارے دفاعی نظام کا کیا بنے گا آخر جی؟ اس حوالے سے جو بھی ہو آئین کے مطابق ہو، میرٹ پر ہو، جس کو اختیار ہے وہی کریں. جے یو آئی فے کے سربراہ نے کہا کہ عمران خان نے ملکی سیاست اور اداروں کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن ہمیں اداروں پر مکمل اعتماد ہے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت میں استحکام کی جانب پیشرفت کا عمل جاری ہے. جن کا پچھلا ریکارڈ فساد کا ہے، گھیراؤ جلاؤ کا ہے، وہاں اسلام آباد کے امن کو تباہ کرنے کا ہے، تو ظاہر ہے پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کو امن فراہم. آپ کا پیسہ جو ہے ایک جگہ ٹھہر نہیں رہا تھا، اور جہاں تک کہ 245 250 کے قریب ڈالر کے مقابلے میں آ گیا تھا. اب وہ واپس آ گیا ہے، اب 220 سے 25 کے درمیان اٹکا ہوا ہے. قیمتیں جو ہیں پیٹرولیم کی وہ مستحکم ہیں، یعنی بڑھ نہیں رہی ہیں. جو پیسے ریزرو میں وہ چھوڑ کے گئے تھے اس سے کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے اس کے اندر، تو ایک بہتر صورت کی طرف ہم جا رہے ہیں. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں ملک کے تمام علاقوں کا دورہ کریں گے. آئندہ عام انتخابات میں ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق الیکشن لڑیں. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں کل سے ٹرائل کا آغاز ہوگا. ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال سماعت کریں گے. فوجداری کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے معاملہ ٹرائل کورٹ بھجوایا گیا ہے. ریفرنس میں الیکشن ایکٹ کے سیکشن 137، 170، 167 کے تحت ٹرائل کورٹ سے شکایت منظور کر کے عمران خان کو سزا دینے کی استدعا کی گئی ہے. وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور اس صنعت کو درپیش مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. وفد نے چینی کی برآمد، جنرل سیلز ٹیکس اور دیگر امور پر وزیر خزانہ سے گفتگو کی. وزیر خزانہ نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے چینی کی قیمتوں میں استحکام اور اسٹریٹجک ذخائر برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ حکومت شوگر انڈسٹری کے ساتھ گنے کے کاشتکاروں کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ ہے. سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت کاروباری برادری کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ معاشی عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے. زراعت سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا، جس میں گنے کے کاشتکاروں کے مسائل، گندم اور دیگر اجناس کی قیمتوں سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا. ارکان نے گنے کا کرشنگ سیزن جلد شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تاخیر سے گندم کی پیداوار میں کمی کا خدشہ ہے. وزارت غذائی تحفظ شوگر ملز سے بات کر کے اس کا حل نکالے. کمیٹی اراکین نے کہا کہ گندم کی امدادی قیمت 4000 روپے فی من ہونی چاہیے. وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ پاکستان میں شوگر اور گندم سمیت ہر صنعت میں مافیا آپریٹ کر رہا ہے جنہیں گرفت میں لانا ضروری ہے. انہوں نے بتایا کہ چینی برآمد کی اجازت دی گئی تو مقامی سطح پر قلت پیدا ہو جائے گی. کمیٹی ارکان نے کہا کہ شوگر ملز مالکان کے بجائے کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے. پنجاب میں گنے اور گندم کے کاشتکاروں کے مسائل میں اضافہ. پنجاب میں شوگر ملز کی جانب سے گنے کی بروقت کرشنگ شروع نہ کرنا صوبائی حکومت کی ناکامی ہے. کرشنگ سیزن شروع نہ ہونے سے گندم کی کاشت میں تاخیر ہو رہی ہے، جس سے کسان پریشان ہیں. رحیم یار خان سے پی ٹی وی کے نمائندے اشفاق احمد سے تفصیل جانتے ہیں.
ضلع روہنگا خان میں اس سال 4,65,000 رقبے پر گنے کی فصل کاشت کی گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 10% کم ہے۔ ضلع روہنگا خان میں 5 شوگر ملیں ہیں جن کی مجموعی طور پر 12,000 میٹرک ٹن یومیہ گنا بیلنے کی صلاحیت ہے، لیکن شوگر ملوں کی طرف سے کرشنگ سیزن شروع نہ ہونے سے گنے کی کٹائی نہیں ہو رہی، جس سے گندم کی بوائی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ گنے کی فصل اس علاقے کی اہم فصل ہے۔ شوگر مل مالکان نے ابھی تک شوگر ملیں نہیں چلائی، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ گندم کی بوائی کا وقت نکلنا جا رہا ہے۔ اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بیلنے لگا لیے اور گڑ اور شکر بنا کے مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں۔ لیٹ تھی دی وجہ نا اسے بہت پریشان ہے، بیلنا چلایا سے کنیک بہت لیٹ تھی نہیں ویندی ہے، فصل دا ٹائم جڑا ضائع تھی نہ ویندے، کنیک نہیں رہ سکتے تو والی میں سمجھ اسے واسطے کوئی کو نہیں۔ گنے کی فصل کی کٹائی سے خالی ہونے والی زمین پر مرحلہ وار گندم کی کاشت کی جا رہی ہے۔ محکمہ زراعت نے کسانوں کو 30 نومبر سے پہلے گندم کی کاشت مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس لیٹ کرنے سے آپ یہ دیکھیں کہ گندم کی کاشت متاثر ہو رہی ہے، آدھے سے زیادہ جو موسم ہے وہ گزر چکا ہے کاشت کا۔ شوگر مل حضرات نے اس ٹائم تک شوگر ملیں نہیں چلائی، جس کی وجہ سے کسان بہت زیادہ پریشان ہے۔ صوبے بھر میں اس سال گندم کی بوائی شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ گنے کے کاشتکاروں کو فصل کو اضافی پانی بھی لگانا پڑ رہا ہے، جس سے ان کی پیداواری اخراجات بڑھ رہے ہیں اور زمین دیر سے خالی ہونے کی وجہ سے اگلی فصل کی کاشت وقت پر نہیں ہو رہی، جس سے کاشتکار پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے شکار ترقی پذیر ممالک کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں رنگ لے آئیں۔ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام میں پاکستان نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ وقار حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو 14 سال سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ ترقی یافتہ ممالک کو ایک پیج پر اکٹھا کیا، پھر انہیں باور کرایا کہ ترقی پذیر ممالک موسمیاتی تباہی کا شکار ہیں اور ان کی تلافی کی جائے۔ کوپ 27 میں یہ بات منوانے کے لیے مذاکرات میں 2 دن مزید لگائے گئے۔ آخر کار لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ قائم کر دیا گیا۔ ایس ڈی پی آئی کے پالیسی ڈائریکٹر کہتے ہیں کوپ 27 میں پاکستان کی سر توڑ کوششوں کو دیکھا اور پاکستان نے اپنا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کیا۔ لاس اینڈ ڈیمیج ابھی تک ان 14 سالوں میں ایجنڈے کا حصہ نہیں بنا تھا۔ وہ پاکستان نے جو ایفرٹ کی، یو این کے سیکرٹری جنرل ادھر آئے، ان کو بتایا پاکستان اس وقت فلڈ کے بعد کیا صورتحال ہے۔ پاکستان G77 کا چیئرمین بھی ہے اور وہاں پہ بھی ڈپلومیٹک لیول پہ وزیر خارجہ نے، پرائم منسٹر نے خود بہت سارے جو جتنے کی لیڈر آئے ہوئے تھے ان سے ملاقات کی، ان کو کہا کہ ہمیں یہ فنڈ قائم کرنا چاہیے، اور پھر پاکستان کے ایفرٹ سے ہی پہلی دفعہ ایجنڈا کمیٹی میں پاکستان کو ڈالا گیا اور بالآخر لاس اینڈ ڈیمیج اس بحث کا حصہ بنا جو پہلے ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا کبھی۔ پاکستان نے G77 کے چیئرمین ہونے کے ناطے بھی اہم کردار ادا کیا اور دیگر ممالک کو بتایا کہ یہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے۔ فنڈ تو قائم ہو گیا ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک کو چاہیے کہ اس پر جلد از جلد عمل درآمد کر کے موسمیاتی تبدیلی کے شکار ممالک کے نقصانات کی تلافی کریں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ میں ریکوڈک معاہدے سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کل تک ملتوی ہو گئی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کے روبرو عدالتی معاون ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ قوانین وفاقی یا صوبائی ہوتے ہیں۔ 1948 کا معدنیات کی قانون وفاقی اور صوبائی دونوں نوعیت کا ہے اور یہ آئین کی اسکیم کے منافی ہے۔ گیس، تیل اور نیوکلیر انرجی کے علاوہ باقی معدنیات کے حوالے سے قانون سازی کے لیے صوبوں کو اجازت ہونی چاہیے۔ عدالتی معاون زاہد ابراہیم نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 2017 میں معدنیات اور کان کنی کا قانون لایا گیا، جس کے بعد وہاں 1948 کا معدنیات کا قانون منسوخ ہو چکا ہے۔ ریکارڈک مقدمہ اخبار میں چھپنے والے ایک ایسے آرٹیکل سے شروع ہوا جو 1 ہفتے بعد واپس لے لیا گیا تھا۔ زاہد ابراہیم نے کہا کہ ریکارڈک منصوبہ پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے دروازے کھولے گا۔ غیر ملکی کمپنی بیرک گولڈ کے وکیل مختوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا اور سندھ حکومتیں معدنیات ایکٹ میں پہلے ہی ترامیم کر چکی ہیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیب ریفرنس میں بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کل سنایا جائے گا۔ اسحاق ڈار سمیت شریک ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر سماعت جج محمد بشیر نے کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح، شریک ملزم سعید احمد کے وکیل عدنان شجاع بٹ اور نیب پروسیکیوٹر افضل قریشی نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر اپنے دلائل مکمل کیے۔
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि PTI ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई होगी। इस बार किसी को हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चोरी पकड़ी गई है। इमरान खान ने फरागोगी के जरिए घड़ी फरोख्त की है। इमरान खान मुल्क में इंतशार और नफरत की सियासत को फरोग दे रहा है। उनके पास नंबर्स नहीं हैं, लोग उनके पास मौजूद नहीं हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, इसीलिए वो कान में आके कोई कहता है टांग ना हिलाओ, टांग ज़्यादा हिला रहे हो, जिसमें 6 गोलियां और खोलियां जो बच्चे दे रही हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, और वो जो मेकअप करके तस्वीर जारी की गई है, यानी कोई टांग जिसमें गोली लगे यूं यूं हिलती है, वो कैमरामैन आगे कह रहा है जी लातना लाया। ये हालात हैं इनके ड्रामेबाजी के। ये चोर भी हैं, नौसरबाज भी हैं, फनकार भी हैं। खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी को रूल्स के खिलाफ बेचा गया और बाद में उसकी कीमत का बिल्कुल इतना सा परसेंटेज 2% भी नहीं है जो तोशाखाना में जमा कराया गया है। तो देखें, ये तो अब इमरान खान साहब को सफाई इसकी देनी होगी और मुझे लगता है कि शायद उनको जेल भी जाना पड़ सकता है इस केस के अंदर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 15 नवंबर को बाजोड़ में दहशतगर्दों के हमले से शहीद होने वाले नायक ताज मोहम्मद और लांस नायक इम्तियाज अहमद के अहल खाना से टेलीफोन पर बात की और उनसे इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि वतन अजीज के लिए शहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। कौम वतन के बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश करती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की बाक़ियात के मुकम्मल खात्मे तक कोशिशें जारी रहेंगी। पाक फौज और कौमी इदारों की हिमायत में कौम यकसबान। ज़ियारत में शहरियों ने पाक फौज और इदारों के हक में रैली निकाली। शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए। मुकर्ररी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है, इनके खिलाफ बयानबाजी काबिल मुसम्मत है। इमरान खान जाती मफाद के लिए अफवाज पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। ठट्ठा में भी शहरियों की जानिब से रैली निकाली गई जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि पाक अफवाज हर मुश्किल घड़ी में कौम की मदद के लिए पेश रही हैं। कुछ मफाद परस्त मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके इन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। नवाबशाह में भी पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि मुल्की इदारों के खिलाफ साजिश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर वजारती इजलास में भारतीय क़यादत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत की खोखली बयानबाजी पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के कामयाब इकदामात के सामने नाकाम हो गई है। फैटफ ने भी पाकिस्तान के इकदामात को तस्लीम किया है। तर्जुमान का कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का कोई जवाज नहीं। हाजिर सर्विस भारतीय नेवल कमांडर कुलभूषण यादव तखरीबकारी और दहशतगर्दी में भारत के बराह रास्त मुलव्वस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और तंजीमों का कहना है कि मोदी हुकूमत एक सोची समझी साजिश के तहत कश्मीरी नौजवानों को नाम निहाद झड़पों की आड़ में दौरान हिरासत शहीद कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने अपने बयानात में कहा कि नए मनसूबे के तहत भारतीय फौज और पुलिस बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करके उन्हें दौरान हिरासत कत्ल कर देती है और नाम निहाद झड़प का बहाना बना दिया जाता है। हुर्रियत रहनुमा डॉक्टर मसब, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग ने गुज़श्ता रोज जिला इस्लामाबाद में एक नौजवान सज्जाद अहमद की शहादत को सफ़ाक मोदी हुकूमत की जानिब से कश्मीरियों के कत्लेआम की ताज़ा तरीन मिसाल करार दिया है। उन्होंने इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से अपील की कि वो हिंदुत्वा हुकूमत के हाथों कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल को रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में सज्जाद अहमद के दौरान हिरासत कत्ल का हवाला देते हुए कहा कि जब भी किसी नौजवान को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे हाइब्रिड अस्करियत पसंद करार देकर कत्ल कर दिया जाता है। सज्जाद अहमद के मामले में भी यही कहानी दोहराई गई। उन्होंने कहा कि बेगुनाह नौजवानों के कत्ल पर किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने सेंट्रल जेल श्रीनगर से एक पैगाम में कहा कि अगर भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए अपनी पूरी फौज भी तैनात कर दे तब भी जिल्लत आमेज शिकस्त इसका मुकद्दर है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अपने मकसद से दस्तबरदार होने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन और खुशहाली के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू के इलाके सामा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख करते हुए जो दावे किए थे वो झूठे साबित हुए क्योंकि ज़मीनी सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स कहानी बयान कर रही है।
खबर दें आपको इंडोनेशिया से, जहां मगरबी जजीरे जावा में आने वाले जल्जले में 162 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिदत 5.6 रिकॉर्ड की गई है। इसका मरकज जकार्ता से 75 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़ कस्बे कयांजर में था और गहराई 10 किलोमीटर थी। कुदरती आफत के फौरी बाद इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई। मुतासरा इमारतों में फंसे अफराद के इनखला के साथ जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। आफ्टर शॉक्स की वजह से हुकाम ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जावा जजीरे में आने वाले ज़ल्ज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए इंडोनेशिया के सदर और जाँ बहक होने वाले लोगों को से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। उधर रूस और यूक्रेन के दरमियान डोनेट्स्क के मिहाज पर शदीद लड़ाई की इत्तलात हैं। रूस के ज़ेरे कंट्रोल यूक्रेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ेपोरिज़िया गोलाबारी से लर्ज़ उठा। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने पावर प्लांट पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तर्ज अमल से बड़ी जौहरी तबाही का खतरा है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के फौरी बाद इस प्लांट का कंट्रोल हासिल कर लिया था। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन ने दानिस्ता तौर पर जौहरी पावर प्लांट को निशाना बनाया। यूक्रेन का कहना है कि रूसी फजाई हमलों के नतीजे में तबाह होने वाली तवानाई के बुनियादी ढांचे की मरम्मत का काम जारी है। हुकाम के मुताबिक दारुल हुकूमत कीव समेत मुल्क के 15 इलाकों में बिजली की फराहमी के मसाइल का सामना है। शिमाली शाम से तुर्किया के सरहदी इलाकों में रॉकेट हमलों में 3 अफराद हलाक हो गए। अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के जेर कंट्रोल इलाके तिल रफात से फायर किए गए रॉकेट तुर्किया के स्पेशल पुलिस फोर्स कैंप्स के करीब गिरे। तुर्किया की जानिब से सरहदी इलाकों में हिफाजती इंतजामात को बढ़ा दिया गया है। रॉकेट हमलों के तुर्किया की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई। तुर्किया ने गुज़श्ता रोज इराक और शुमाली शाम में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन का आगाज किया। चीन और कतर में LNG की फराहमी के लिए तवीलुल मुद्दत मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे के तहत कतर एनर्जी चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन को 27 बरस में सालाना 4 मिलियन टन माया गैस फराहम करेगी। इस मुआहिदे की मालियत $60 अरब है और पहली डिलीवरी 2026 में होगी। 2021 में चीन दुनिया का सबसे बड़ा LNG दरामद कुनिंदा था, लेकिन कोरोना पॉलिसी की वजह से LNG के इस्तेमाल में कमी हुई। चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन के लिए कतर के गैस फील्ड को तोसी दी जाएगी और पैदावारी सलाहियत 77 मिलियन टन सालाना से बढ़ाकर 2027 तक 126 मिलियन टन की जाएगी। कासिम जोरमात तोकायफ काज़किस्तान के दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर कासिम तोकायफ ने कल होने वाले सदारती इलेक्शन में 81.31% वोट्स हासिल किए। सदारती इलेक्शन में मजमूई तौर पर 6 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 1 करोड़ 20 लाख में से 83 लाख वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया और टर्न आउट 69.4% रहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काज़किस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायफ को इंतखाबात में भारी अक्सरियत के साथ दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। सवालों के वक्फे में रियासतों और सरहदी उमूर के वजीर तलहा महमूद ने कौमी असम्बली को बताया कि आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 12,82,000 रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन मुकीम हैं, ताहम गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों की तादाद उससे कहीं ज्यादा है। सही आदाद-ओ-शुमार मालूम करने के लिए जल मुल्कीर सर्वे शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फहश मवाद से मुतालिक सवाल पर इत्तलात व नशरियात के पार्लिमानी सेक्रेटरी हामिद हमीद ने बताया कि इस बारे में पैमरा के वाज़ेह कवानीन मौजूद हैं जिस पर सख्त अमल दरामद की ज़रूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामला मुतल्लिका कायम कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात की शाम 5 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लिमानी सर्विसेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें इदारे के तंजीमी अहदाफ और कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लिमानी सर्विसेज को डिजिटाइज करने और असर हाजिर के जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत है। इजलास में PTV पार्लियामेंट से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आए। राजा परवेज अशरफ ने इदारे के इस्तेदादिकार में इजाफे के लिए सरकारी जामियात के साथ रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी से पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ ने पेशावर में मुलाकात की और हज़ारा डिवीजन में मंसूबों पर पेशरफ्त के बारे में तबादला ख्याल किया। विफाकी वज़ीर ने कहा कि कुकमिंग फीडर, बाड़ा गली फीडर और लोराबाड़ियाँ फीडर की बर्फबारी से कबल मरम्मत और बोसीदा तारों की तब्दीली यकीनी बनाई जाए।
लापता अफराद से मुतालिक पार्लिमानी कमीशन की हिदायत पर बलूचिस्तान में राब्ता सेल कायम कर दिए हैं, जहां मुतासरा खानदान राब्ता कर सकते हैं। कोयटा में लापता अफराद के लवाहिकीन से खिताब करते हुए सरदार अख्तर मिंगल ने कहा कि कमिश्नर्स की निगरानी में कायम इस सेल में कवायफ वसूल किए जाएंगे और ये शिकायत वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी भिजवाई जाएंगी। सरदार अख्तर मिंगल का कहना था कि जबरी गुमशुदगी अहम मसला है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम दाखिली और सियासी इस्तेहकाम के साथ मुंसलिक है। इमरान खान मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ फर्जासराई अफसोसनाक है। ये 22-24 करोड़ जो अवाम है, इसका मुस्तकबिल बाहमी इत्तेहाद से मरबूत है, इसका मुस्तकबिल मुफाहमत से मरबूत है। हम तमाम सियासी जमातों से अपील करते हैं कि खुदारा अपनी इनाओं को कुर्बान करें। खुद इमरान खान साहब ने भी ये बात तस्लीम की है और कहा है कि उनकी हुकूमत के गिराने में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। तो फिर जो एक गलीज कैंपेन गुज़श्ता 6 माह से चलाई गई मुल्क के सलामती के इदारों के खिलाफ, उसका कौन जिम्मेदार है? 2 हिस्से हैं साजिश के कि या कौम को असबियतों में बांट दो, शिया सुन्नी में, पंजाबी बलोची में, सिंधी मुहाजिर में, या फिर कौम और फौज को लड़ा दो। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल नागुज़ीर है। लाहौर के ताजरों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए ज़ाती मुफादात पर मुल्क को तरजीह देना होगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत ताजरों के मसाइल हल करने और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देने के लिए कोशां है। सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मुलाकात की। इस मौके पर शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों की सफाई की मजबूत और सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बारह गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सेहत और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। कराची में सिनफी इम्तियाज, तशद्दुद और कम उम्री में शादी के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक और बच्चों के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐवान बाला की मजलिस कायमा निशकारी के चेयरमैन सेनेटर शमीम आफरीदी ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर के आलाकार बने हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान को सियासत का हिस्सा न बनाया जाए। कोहाट प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुल्की इदारों को तनकीद का निशाना बनाने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान पर उंगली उठाने का मतलब इन्हें और मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है। पाक फौज हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की रेड लाइन है। कौम इनके शाना बशाना खड़ी है और किसी को भी इदारों को कमज़ोर करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान मजहब कार्ड इस्तेमाल करके इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दे रहा है। वो इदारों के खिलाफ फर्जा सराई और उन्हें बदनाम करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। एक शख्स खुले आम इदारों को गैर आईनी गैर कानूनी काम करने के लिए कह रहा है, इदारों को फरमा रहा है कि आपको तो पता था, उनके सारे पेपर्स आपके पास पड़े हुए तो आप उनको रोकते। किस कानून के तहत आप कह रहे हो इमरान खान? इससे पहले भी इसने आइन की धज्जियां उड़ाई, कानून की धज्जियां उड़ाई। जब असेंबली डिसॉल्व की वो भी गैर आईनी गैर कानूनी काम था, और अब भी ये जो बात इसने कही ये गैर आईनी और गैर कानूनी काम है। मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और तमाम आला अदालतों से कि इसकी इस गैर आईनी बात का फिल फोर नोटिस लिया जाए। कानून के दायरे में रहकर इसका वो एहतसाब होना चाहिए। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि फैज़ाबाद धरने के लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त फेस सेविंग के सिवा कुछ नहीं। एक बयान में उन्होंने कहा कि जिस शख्स का लॉन्ग मार्च लोग जमा करने शहर शहर फिरता हो, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि इमरान खान घड़ी मामले पर शर्मिंदा होने की बजाय चोरी का दिफा कर रहे हैं। पीटीआई के नाम निहाद लॉन्ग मार्च के बाद शहरी अजियत में मुब्तला हैं। एहतजाजी मार्च की वजह से जीटी रोड पर कारोबारी तबके और मुसाफरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने पीटीआई के इस तर्ज अमल की शदीद मजम्मत की है।
इमरान खान को चाहिए कि मफाहमत की तरफ जो है वो सियासत को लेके आए, ना कि इंतकामी सियासत करें, जिसकी वजह से आम आवाम को जो है वो इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ये महंगाई की वजह से जो है आम आवाम जो है इस महंगाई की चक्की में पिस रही है। खान साहब जो रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, रियासत मदीना ये तो नहीं कि आप गरीब को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा दें, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इसके आगे जो हाथ जोड़ के कहती है खुदारा खान साहब इस धरने की सियासत से बाज आ जाए। ताजा बरादरी की जो ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सामान लेने वाली है वो भी बंद होने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। हम चाहते हैं कि ये धरना जो सियासत हो रही है मुल्क में इसका खात्मा होना चाहिए। आए रोज कोई ना कोई धरना, कोई ना कोई रैली, कोई ना कोई खान साहब ने तो पाकिस्तान में बस एक ही इशू है कि धरना, रैली और फड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। इस वजह से लोग बेचारे ताजा जो है ना वो भूख समझ लेंगे उनके घरों में आगी हुई है, किराए पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सूबे में डेयरी और लाइव स्टॉक शोबे की तरक्की के लिए जल्द पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। डेयरी फार्म्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में मकई की बैन सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी लगाई गई है ताकि लाइव स्टॉक के लिए फीड की तैयारी में मुश्किलात पैदा न हो। उन्होंने कहा कि जानवरों की वैक्सीन की तैयारी का टास्क एक मकामी यूनिवर्सिटी को दे दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में ई खिदमत मराकज़ के क़याम की मंजूरी दे दी है। मनसूबे में 5 करोड़ 10 लाख रुपए लागत आएगी। कोयटा, हब, गवादर, खुजदार और लौरलई में मराकज़ कायम किए जाएंगे। मराकज़ में शहरियों को एक ही छत तले 20 ऑनलाइन सर्विसेज फराहम की जाएंगी। आवाम को कम वक्त में खिदमात की फराहमी के साथ हुकूमती मुहासिल में भी इजाफा होगा। जर्मनी के सफीर अल्फ्रेड ग्रेन्स ने चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज कोयटा का दौरा करते हुए कहा कि जर्मनी बलूचिस्तान के ताजरों के लिए वीजा फराहमी का हुसूल आसान बनाएगा। उनका कहना है कि जर्मनी पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत करना चाहता है। इस मौके पर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और सरमायाकारी के इम्कानात पर भी बातचीत हुई। सदर ममलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तानी फन व सकाफत की नुमाइशें आलमी सतह पर मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करती हैं। PNCA में तस्वीरी नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमारा कौमी वर्सा और फन व सकाफत शानदार रिवायात की हामिल हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर ऐसी नुमाइशों के निकास से नौजवानों खुसूसन उभरते हुए फनकारों को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलेगा। नाज़रीन, खून के सरतान में मुब्तला 17 साला हसनैन ज़फ़र ने अबू धाबी में मुनक्किदा फार्मूला 1 ग्रैंड प्री रेस का फाइनल देखने और चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन से मुलाकात की ख्वाहिश की थी, जिसे आलमी इदारा मेक अ विश ने पूरा कर दिया। मज़ीद क्या तफसील है बताएंगे समीउल्लाह। ये है पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हसनैन ज़फ़र, जो कि खून के सरतान में मुब्तला हैं। हसनैन ज़फ़र को शुरू से ही कार रेसिंग का शौक है। इनकी ख्वाहिश थी कि वो फार्मूला 1 रेस के आलमी चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन से मुलाकात करें और फार्मूला 1 रेस का फाइनल देखें। इनकी इस ख्वाहिश को आलमी इदारा मेक ए विश ने पूरा किया। मेक ए विश पाकिस्तान ने हसनैन ज़फ़र की ख्वाहिश पर फार्मूला 1 ग्रां प्री रेस के ऑर्गेनाइजर से राब्ता किया और मेक ए विश UAE के ताउन से ये मुनफरिद ख्वाहिश पूरी की। इस मौके पर हसनैन ज़फ़र ने आलमी चैंपियन और रेस में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। अपनी ख्वाहिश की तकमील पर हसनैन निहायत खुश नजर आए। थैंक यू मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान, थैंक यू मेक अ विश फाउंडेशन UAE एंड थैंक यू फार्मूला 1 कार रेस। मेक ए विश जानलेवा अमराज में मुब्तला बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील का आलमी इदारा है, जो कि पाकिस्तान में अपने क़याम से लेकर अब तक 16,000 बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर चुका है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टेलीविजन का दिन मनाया गया। मौजूदा दौर में टेलीविजन की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। शाहरुख शफी की रिपोर्ट देखते हैं। टेलीविजन अपने वक्त की एक ऐसी हैरतअंगेज इजाद है जो कि दौरे हाजिर में भी राब्ते, मालूमात और खबरों तक रसाई का एक ताकतवर तरीन जरिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1997 में 21 नवंबर को टेलीविजन के आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। दिन मनाने का मकसद इस हवाले से लोगों में शऊर उजागर करना और टीवी की तरफ से की जाने वाली कोशिशों को सराहना है। टेलीविजन की इजाद से कबल सौती मालूमात और खबरों की रसाई का वाहिद जरिया रेडियो था। पाकिस्तान में 26 नवंबर 1964 को
तजर्बाती बुनियादों पर लाहौर से टीवी की नशरियात का बाकायदा आगाज हुआ। ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के साथ पाकिस्तान टेलीविजन ने मालूमात, तफरीह और खबरों के जरिए रफ्ता रफ्ता लोगों की जिंदगी में रंग भर दिए और खुद भी तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ डिजिटल दौर में दाखिल हो गया। 1992 में पहली मरतबा मुल्क भर में निजी टीवी का आगाज हुआ और जो मुल्क के कोने कोने में टीवी की नशरियात देखी जाने लगी। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 9 करोड़ के करीब टीवी के नाजरीन मौजूद हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी के इनकलाब ने जहां रेडियो की तर्ज बदली, वहीं टेलीविजन का अंदाज भी रवायती एंटीने और सैटेलाइट केबल से होता हुआ अब वेबसाइट्स और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में दाखिल हो चुका है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब में सरकारी जामियात के नेटवर्क इंटर यूनिवर्सिटीज़ कंसोर्शियम के खुशाइन नताइज सामने आ रहे हैं। आला तालीम के फ़रोग़ के लिए अब निजी यूनिवर्सिटीज़ से इश्तराक का अमल भी शुरू कर दिया गया है। मज़ीद तफसील बताएंगे लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से इंटर यूनिवर्सिटीज़ कंसोर्शियम का क़याम 2012 में अमल में लाया गया, जिसका मकसद मुल्क भर में मौजूद पब्लिक यूनिवर्सिटियों के दरमियान खलीज को दूर करके ताउन को फ़रोग़ देना, एक दूसरे के तजर्बा से इस्तेफादा करना और तालीमी और तहकीकी सरगर्मियों की हौसला अफजाई करना है। इस कंसोर्शियम ने न सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटियों के दरमियान वसाइल की शराकत दारी का मौसर मैकेनिज्म वज़ा किया, बल्कि तलबा और तलबात को तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए रोड मैप भी दिया। कंसोर्शियम मुल्क में तालीम और तहकीक के फ़रोग़ के लिए अब निजी यूनिवर्सिटियों से भी इश्तराक करेगा। अभी जो जिसके ऊपर हम बड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं वो ये है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी एक जो गैप उसको ब्रिज किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के चैलेंजेस ऐसे हैं कि कोई भी सिंगल सेक्टर जो है उसको नबरदस्मा नहीं हो सकता है। इंटर यूनिवर्सिटीज़ कंसोर्शियम में निजी सेक्टर की तरफ से प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की नुमाइंदगी पर उनके एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर और मुख्तलिफ सरकारी और निजी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मुल्क में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान बाहमी ताउन नागुज़ीर है। उन्होंने सरकारी और निजी सेक्टर की यूनिवर्सिटियों में खलीज दूर करने और तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम पंजाब के मैदानी अजला में सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही: लै -10, काला -5, ज़ियारत -4, हुंजा, स्कर्दू, स्टोर -3, बगरोड कलात -2, मालम जब्बा और शोपियाँ में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बाबर आजम की क़यादत में 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, अजहर अली, फ़हीम अशरफ शामिल हैं। हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह और नुमान अली भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद भी स्क्वाड में शामिल हैं। शाहीन आफरीदी, हसन अली, फवाद आलम और यासिर शाह को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। इंग्लिश टीम 27 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला टेस्ट 1 दिसंबर से रावलपिंडी, दूसरा 9 दिसंबर से मुल्तान और तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी से खुश हूं। टीम ने जिस तरह 2 मैचेस हारने के बाद कमबैक किया वो सब ने देखा। कज़ाफी स्टेडियम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद वसीम ने कहा कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। उन्होंने कहा कि होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे।
T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंजरी का शिकार होने वाले फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। फास्ट बॉलर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा कि मेरा आज अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, ताहम अल्लाह का शुक्र है अब खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूं। शाहीन शाह आफरीदी इन दिनों रिहैब के अमल से गुजर रहे हैं और पीसीबी के मुताबिक वो जल्द सेहतयाब होकर दोबारा ग्राउंड में नजर आएंगे। कतर में शुरू होने वाले फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के आगाज में ही नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। फीफा के मुताबिक वर्ल्ड कप फुटबॉल में अब तक तकरीबन 30 लाख के करीब टिकट फरोख्त हो चुके हैं। तर्जुमान फीफा के मुताबिक टिकटों की फरोख्त में कतर ने रूस को पीछे छोड़ दिया है। 2018 में रूस में होने वाले वर्ल्ड कप के आगाज तक 24 लाख टिकट्स फरोख्त हुए थे, जबकि कतर में जारी इवेंट के आगाज तक तकरीबन 30 लाख टिकट फरोख्त हो गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।